Good morning, students. Good morning, standard 8s. Take out your history books. It includes civics also. Today we are going to learn lesson number 1, and that is Introduction to the Parliamentary System. Okay, this is your civics period. Take out your book. Page number 68. Page number 68. Once again, I repeat, today we are going to lesson of civics. Lesson number 1, Introduction to the Parliamentary System. But before moving ahead, I want to explain some concept of civics words. Okay, let us see. See on the blackboard. Number 1, Parliament. Parliament means Sausar. Okay, Parliament means Sausar. Number 2, Legislature. Legislature means a group of people who have the power to make and change law. A group of people who have the power to make and change law means Vidhi Mandal, yani legislature. Okay. Number 3, Executive. Executive means Karyakari Mandal. Executive means Karyakari Mandal. Concerned with managing, making plans. Okay, Karyakari Mandal. Then number 4, Judiciary. Judiciary means Nyaya Vyavastha. Judiciary is a system of courts which interprets and apply the law. Okay, judiciary is a system of courts which interpret and apply the laws. Means Nyaya Vyavastha. Okay, now see in the book. See in the book. See in the book. Page number 68. Okay. In this chapter, we will learn the machinery or the system of government as given in the Indian Constitution. हमें क्या पढ़ना है इस लेसन में? We will learn the machinery, okay, or the system of government, okay, as given in the Indian Constitution. Now, have you thought of this? What is the parliamentary system of government? In India, we have Prime Minister, but why is there no Prime Minister in the United States of America? What is the difference between a parliamentary and a presidential system of government? Now, these questions would lead us to conclude that every country has a different form of government. हर एक देश में different form of government रहता है ना? Before we go ahead to understand different types of government systems, let us get information about the main branches of government. Now, let us learn about the main branches of government. Now, the function of the legislature. Legislature यानी विधि मंडल. Okay, legislature यानी विधि मंडल. Once again, see on the blackboard, a group of people who have the power to make and change law. ऐसे लोगों का ग्रुप जिनको क्या है, पावर है कायदा बनाना और उसमें चेंजेस भी वो कर सकते हैं. ओके, द फंक्शन मीन्स काम, कार्य. द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर यानी विधि मंडल का काम क्या है? इज टू मेक लॉज, कायदे बनाना. द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी मंडल. एग्जीक्यूटिव मीन्स व्हाट? कार्यकारी मंडल. द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स यानी क्या? कार्यवाही करता है, फुलफिल करता है. उन्होंने जो वर्क उनको दिया है वो फुलफिल करता है. द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी मंडल इम्प्लीमेंट्स द लॉज. एंड जुडिशियरी यानी न्याय व्यवस्था, a system of courts, right? And the judiciary provides justice, न्यायदान का काम करता है. ठीक है. The function of these organs means parts, their jurisdiction means अधिकार क्षेत्र, and limitations on their power and the interrelationship between these organs are decided by the Constitution. यानी ये तीनों मिलके किस तरह से काम करेंगे ये डिसाइड कौन करता है? Constitution, राज्य घटना. It is the nature of their interrelationship that determines the system of government adopted in a particular country. What they said, it is the nature. Nature means form. Okay, it is the nature of their interrelationship. यानी इन तीनों में किस तरह की interrelationship है, आपसी संबंध है, that determines वो तय करता है the system of government adopted by a particular country. कोई particular country ने कौन सी government system adopt की है ये इस पर depend है. Okay, there are two main types of government system that are followed. Two main types of government system. Okay, number 1 is parliamentary system and number 2 presidential system. Let us see. Parliamentary system of government. The parliamentary system of government developed
primarily in England. ये कहाँ पे डेवलप हुआ? इंग्लैंड में. ओके. In England the constitution is an unwritten constitution. इंग्लैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखी गई नहीं है. The governance is carried out in accordance with traditions, customs and conventions. Convention means belief, practice, rules. Okay. The government यानी उनका सरकार किस तरह से चलता है? The governance is carried out in accordance with tradition. यानी उनकी जो प्रथाएं, परंपराएं या उनके जो बिलीफ्स है या प्रैक्टिस है, रूल्स है, उसी के मुताबिक उनका गवर्नमेंट चलता है. The British Parliament is an institution that has evolved means developed. Evolved का मीनिंग क्या होता है? डेवलप. Evolved means develop over a period of time. यानी धीरे धीरे इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होती गई? डेवलप होती गई. The parliamentary system of government having its root in parliament is considered as a contribution of England. See here once again, parliament यानी संसद. Okay. The parliamentary system of means संसदीय व्यवस्था. Parliamentary system यानी क्या? संसदीय व्यवस्था. Okay. The parliamentary system of government having its roots, उसके रूट कहाँ पाए जाते हैं? In parliament is considered as a contribution of England. और ये यानी ये किसका contribution है? इंग्लैंड का contribution है. Okay. India has adopted this parliamentary system. इंडिया ने कौन सी सिस्टम अडॉप्ट की है? पार्लियामेंट्री, संसदीय. We can see some broad similarities in the parliamentary system of England and the parliamentary system of India. Okay, similarity means sameness. But when look at an institutional level, the Indian parliamentary system is different in its content. लेकिन अगर ऐसे institutional level पे देखा जाए तो हमारे जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो जो है वो कंटेंट वाइज या फिर जो मेन सब्जेक्ट या आइडिया है वो इंग्लैंड से थोड़ी क्या है? different है. Okay, let us understand the characteristics of the Indian parliamentary system of government in India. The parliamentary system is a system of governance. देखो, संसदीय प्रणाली शासन की एक प्रणाली है. See, the parliamentary system यानी संसदीय प्रणाली is a system of governance. ये शासन की प्रणाली है. The legislature यानी विधिमंडल. The legislature of the central government is known as the parliament. ये जो legislature है, the legislature यानी विधिमंडल of the central government is known as the parliament. The Indian parliament is composed of the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Indian parliament, see on the blackboard, the Indian parliament composed of the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Indian parliament देखो, ये जो इंडियन पार्लियामेंट है ये किस तरह से बनी हुई है? कंपोज बाय द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, नाउ सी. Members of the Lok Sabha are directly elected by the people. The number of members in the house is fixed. देखो, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं after every 5 years, है ना? तो जो वहां पे जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव चुन के वो हम ही लोग देते हैं, है ना? Members of the Lok Sabha are directly elected by the people. The number of members in the house is fixed. और उनकी संख्या भी क्या रहती है? फिक्स रहती है. किसकी? लोकसभा मेंबर्स की. Election to the Lok Sabha are held at regular interval. उनके इलेक्शन भी रेगुलर इंटरवल है ना, 5 साल बाद होते हैं. All political parties contest these elections. सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है. द पार्टी विच गेट्स मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इज कंसीडर्ड एज द मेजॉरिटी पार्टी. जिस मेजॉरिटी जो पार्टी को आधे से ज्यादा सीट्स मिलती है
उससे क्या क्या कहा जाता है, मेजोरिटी पार्टी। ओके, द मेजोरिटी पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। और जो पार्टी चुन के ज्यादा, जिस पार्टी के ज्यादा लोग चुन के आते हैं, ज्यादा मेंबर्स चुन के आते हैं, वही पार्टी अपनी सरकार बनाती है। ठीक है, समटाइम्स व्हेन नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। सम पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेजोरिटी एंड दे कैन एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट। तो कुछ पार्टियां इकट्ठा आके अपनी सरकार बनाती है। यानी जो दिस काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट इज नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट, और उसे हम क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट यानी युति। कोएलिशन मींस युति। ठीक है, in this way candidates directly elected by people become members of the legislature and the party in majority gets a chance to form the government। मीन्स क्या हुआ, देखो, कैंडिडेट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी हम जो कैंडिडेट्स को चुन के देते हैं वो बाय पीपल बिकेम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। वो किसके मेंबर बनते हैं, लेजिस्लेचर के, विधिमंडल के। एंड द पार्टी इन मेजोरिटी, और जो पार्टी जीतती है मीन्स गेट अ चांस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड द विनिंग पार्टी will get a chance to form a government। Okay, the leader of the majority party become the prime minister। और जो winning party का जो मेंबर होता है, लीडर होता है, विनिंग पार्टी का जो लीडर होता है ना, उसे क्या मिलता है, चांस मिलता है, किसका, प्राइम मिनिस्टर बनने का। ही और शी सिलेक्ट्स कैंडिडेट्स फॉर मिनिस्ट्रियल पोजीशन फ्रॉम अमंग हिज और हर कलीग्स। और उनको अधिकार रहता है कि वो अपना कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट जो है यानी मंत्रिमंडल जो है वो खुद चुने, यानी किसे सिलेक्ट करना है, कौन से कैंडिडेट को अपने कैबिनेट में यानी मंत्रिमंडल में रखना है, ये पूरा अधिकार चुनने का उनको है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल, ओके, chosen by the prime minister together forms the executive in the parliamentary system of the government। यानी ये सब मिला के कौन तैयार होता है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी चयन है, प्राइम मिनिस्टर की चयन है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फॉर्म द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इनको ही क्या कहेंगे हम, एग्जीक्यूटिव कहेंगे। ओके, किसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज अ ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी, और इनकी ड्यूअल मींस डबल रिस्पांसिबिलिटी रहती है। क्या, एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इंप्लीमेंट लॉज, लॉ की अमल बजावनी करना। ठीक है, देन as they are the member of the legislature they also have to fulfill responsibility of the legislature। वो क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है। ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एज ए लेजिस्लेचर, वो भी उनको पूरी करनी पड़ेगी। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is responsible to the legislature for all their actions and policies। ये सभी यानी पीएम और उनका मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसके लिए, फॉर ऑल देयर एक्शंस एंड पॉलिसीज यानी योजनाएं। इट मींस दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू वर्क विद द लेजिस्लेचर। ठीक है, इट इज फॉर दिस रीजन दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नोन एज रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और यही वजह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, अनदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक यानी पिक्यूलियरिटी या स्पेशलिटी of parliamentary system of government is collective responsibility। क्या है, collective, underline this, collective responsibility। okay, and responsible system of government, underline both। decision taken by any ministry department is considered as decision of the government। किसी मिनिस्ट्री ने या डिपार्टमेंट ने अगर डिसीजन लिया है इनमें से ही, तो वो क्या गवर्नमेंट का डिसीजन माना जाता है। the entire council of minister is responsible for the decision। in the next 2 chapters we will see the examples how the principle of collective responsibility is brought into practice। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। in the parliamentary system the executive means कार्यकारी मंडल is dependent upon the confidence of the legislature in them। confidence means support। ठीक है, in the parliamentary system the executive यानी कार्यकारी मंडल is dependent upon the confidence of the legislature। यानी legislature का इनको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, किसे, एग्जीक्यूटिव को। this means that the council of minister remains in power till it enjoys the support or confidence of the legislature। जब तक legislature का हाथ इनके सर पर है तब तक ये लोग राज कर सकते हैं। ठीक है, if the
legislature feels that the executive does not work in accordance to its wishes, means if the legislature thought that executive does not work according to their procedure or according to their wishes, it removes the executive from power by passing a no confidence motion against the executive. तो फिर वो क्या करते हैं, कौन सा प्रस्ताव लाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं. नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ कीपिंग चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव, यानी अगर इनको अंडर कंट्रोल रखना है इसको एग्जीक्यूटिव को, तो वो कौन सा शस्त्र यूज करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन का. ठीक है. इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर इज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर ये जो है वो क्या है, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है. ठीक है. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्सप्रेस डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ कॉमन पीपल इन द पार्लियामेंट. हमने जो चुन के जो प्रतिनिधि हम भेजते हैं उनका काम क्या रहता है, हमारे जो डिमांड्स है और एस्पिरेशंस है, हमारे विश जो है वो पार्लियामेंट में रखना और उसे पूरी करवाना, पास करवाना. द पार्लियामेंट डिसाइड्स अपॉन इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेयर. ठीक है. वो किसके बारे में सोचती है, पब्लिक वेलफेयर. सिंस इट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एंड एक्सप्रेसेस सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ द पीपल, इट इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम बॉडी. नाउ लेट अस सी why did India adopt a parliamentary system of government. India adopted the parliamentary system of government for several reasons. अभी कौन से reasons है जिसकी वजह से हमने ये parliamentary system of government adopt की है, let us see. The development of parliamentary institutions started during the British rule. इसकी development कब से start हुई, ब्रिटिश रूल से स्टार्ट हुई. ओके. द ब्रिटिश रूल्स गवर्न इन अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम. ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो भी ब्रिटिश राज्य करते, रूलर्स यानी राज्य करते जो थे वो इसी से अपना राज्य चलाते थे. द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज ऑल्सो इन अ वे अ प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. ये जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये इसका प्रोडक्ट है फ्रीडम मूवमेंट का, स्वतंत्र भारत की जो भारत के लिए जो आंदोलन हुआ उसका. ठीक है. इंडियंस वेयर फैमिलियर टू दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. और इंडियंस जो थे वो इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से क्या थे, फैमिलियर थे, परिचित थे. Okay, many discussions took place in Constituent Assembly over the system of government. Constituent Assembly यानी संविधान सभा. Constituent Assembly means what? संविधान सभा. उसमें भी इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई. The framers of the Constitution made few changes in the parliamentary system to suit the Indian situation. Framers of the Constitution means जो संविधान के जो निर्माता थे, ठीक है, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने इसमें इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या किया, थोड़े से चेंजेस किए, बदलाव किए, एंड कि जो किसे सूट हो, इंडियन सिचुएशन को सूट हो. ठीक है. इंडिया की जो परिस्थिति है उससे सूट करे. डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन मीन्स वही डिस्कशन, चर्चा, आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये क्या है, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन, ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है किसका, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. क्वेश्चंस रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर आर डिस्कस इन द लेजिस्लेचर. जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर यानी लोगों की अच्छाई के लिए जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं कि लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए, है ना. देन मेंबर्स फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी आल्सो टेक पार्ट इन दिस discussion. Opposition parties may support the government wherever appropriate, point out shortcomings in politics and laws, put up studied arguments and questions etc. क्या होता है, देखो, opposition parties may support the government. अपोजिशन पार्टी कई बार गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करती है, वेयर एवर अप्रोप्रिएट, जहाँ पे वो सही है वहां पे वो उनको सपोर्ट करती है. पॉइंट आउट शॉर्टकमिंग्स, वो उनके फॉल्ट और वीकनेसेस को भी निकालती है. शॉर्टकमिंग मींस फॉल्ट एंड वीकनेसेस. ओके. एंड पुट अप स्टडीड आर्ग्यूमेंट्स, और फिर आर्ग्यूमेंट्स भी करती है, क्वेश्चन भी उठाती है. एंड दिस हेल्प्स द लेजिस्लेचर टू मेक प्रॉपर लॉज. और यही हेल्प करता है किसे, लेजिस्लेचर को लॉ बनाने में. नाउ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. Presidential system of government can be said to be another important system of government. Okay, this type presidential this type of system exists in countries such as United States of America. Then this system, ये system कहाँ पे है, presidential, ये अमेरिका में है. ठीक है. अध्यक्षीय शासन प्रणाली. दिस सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फॉर्म. ये अलग है पार्लियामेंट्री फॉर्म से. दिस डिफरेंट द सिस्टम इन व्हिच द एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर. यानी एग्जीक्यूटिव जो है वो किससे स्वतंत्र है, लेजिस्लेचर से. ओके, लेजिस्लेचर से.
यानी कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है। कार्यपालिका जो है, कार्यकारी मंडल, वो विधायिका से स्वतंत्र होता है। एंड द हेड ऑफ द स्टेट मींस द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। और प्रेसिडेंट का चयन कौन करते हैं? डायरेक्टली लोग करते हैं। is known as the presidential system of government. Though the three organs are independent from each other, ये जो 3 organs है, कौन से 3 organs? लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, सॉरी ये देखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। Though the 3 organs, all these are the 3 organs. Though the 3 organs are independent and स्वतंत्र from each other, there are enough connections between them to work in harmony. लेकिन फिर भी उनमें क्या है? कुछ कनेक्शन है। हार्मनी यानी सुसंवाद, और कोऑर्डिनेशन यानी एक दूसरे की मदद करना, वो हमेशा करते रहते हैं। The United States of America has adopted the presidential system of government. Following are some features of the system of government. In a presidential form of government, the legislature and the executive are not directly dependent on each other. इस form of government में क्या होता है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल सदन, विधानमंडल सदन, ओके। द हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. The president is the executive head and has lot of powers, including power to implement laws. और president को ही क्या बहुत सारे अधिकार रहते हैं, यहाँ तक उसको वो कायदा भी बना सकता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ सच स्ट्रक्चर द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कीप अ चेक ऑन ईच अदर. लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, यानी दोनों का एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल है, वो दोनों एक दूसरे के यानी एक दूसरे के काम में ध्यान देते हैं, यानी कंट्रोल रहता है उनका. ठीक है, ठीक है. दिस म्यूचुअल कंट्रोल ओवर ईच अदर कैन लीड टू अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. और यही वजह है कि ये जो है वो यानी वो जो गवर्नमेंट काम करते हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है. ठीक है. Apart from the parliamentary and presidential system of government, there are other forms of government systems that are followed in France, Switzerland, Germany, etc. फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी में और दूसरी पद्धति है. ठीक है, गवर्नमेंट एक्सेट्रा. सेवरल कंट्रीज ओविंग टू देयर यूनिक सर्कमस्टेंसेस हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. नेक्स्ट पीरियड में हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. नाउ हियर our lesson is over. In the next period we will mark question answers and the remaining exercise of this lesson. Okay, bye bye, take care.